Hello everyone, this is Anjali Shah. Have you ever noticed that your success, your failure, your accomplishment, everything in your life is first built in your mind and then in your physical reality? So, in this video, I'm going to tell you that how you built your life twice, first in your mind and second in your physical reality. Because recently I was having an example of my relation, actually relation में कोई है जिनका जिनके बारे में मैं थोड़ा सोच रही थी, and I was analyzing their life. Suppose that person is X, and you know I met in 2020 to them, and at that time they were doing financially, they were good, they were, health wise they were good, and everything they were equipped with, they were okay at that time in 2020. At that time when everything was good, they were doing everything from every side, they were good. They were having a lack, that is, you know negative version of themselves, the power of negative thoughts to them. They speak negative always every time. Whenever I ask them क्या आप लोग ठीक हैं और आपका हेल्थ ठीक है, तो दे यूज टू गिव मी वन आंसर कि हेल्थ तो अब मर के ही ठीक होगा. And like this type of things they always give us at that time when health wise वो बिल्कुल ही सही थे, wealth भी सही था, सब कुछ बढ़िया था. And after 2020 passed away, in 2021, in 2022, after year by year, in 2021 they operated for some reason, 2022 again they operated for some reason, in 2023 they commit suicide, in 2024 again they were operated because of that suicide attempt whatever they have done. In 2025 again they were operated for their eyes surgery has been done recently. So when I was analyzing why these patterns really occur in their life, so I come to a conclusion कि यार जब सब बढ़िया था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, तब भी तो यही कहते थे कि हाँ ये बहुत ही खराब है, लाइफ इज़ अनफेयर टू अस, और हमें रास्ते नहीं मिल रहे हैं और हमारी हेल्थ तो अब मर के ही ठीक होने वाली है. व्हेन एवरीथिंग वाज फाइन, यू वर गिविंग दैट पैटर्न्स टू देयर माइंड कि नहीं नहीं खराबी है, सब खराबी है. और अभी 2025 में एक्चुअली सारी चीज़ें ड्रेस्टिकली खराब, जो उन्होंने 2020 में बोला था, दैट ऑल थिंग हैपेंस इन 2025. और ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि डे बाय डे हुआ है, ईयर बाय ईयर हुआ है. तो मुझे तो लगता है कि वो इन सारे ईयर्स में भी अपने आप को यही रिमाइंड करा रहे थे कि नहीं नहीं लाइफ इज़ वेरी अनफेयर टू अस, हम तुम्हारी हेल्थ तो अब मर के ही ठीक होने वाली है. तो कंक्लूजन इज दैट व्हेन यू गिव नेगेटिव इम्प्रेशन टू योर माइंड, योर माइंड इज लिसनिंग टू यू. आप मैं तो ये कहूँगी कि किसी एक दिन भी आप अपने आप को नेगेटिव मत कहिए, एक मोमेंट के लिए भी मत कहिए. तो वो तो सालों से अपने आप को मतलब वो नेगेटिव ही टॉक्स दे रहे थे, वो टेडेक्स टॉक्स अपने आप को नेगेटिव वर्जन में ही दे रहे थे. तो माइंड इज लिसनिंग टू यू, and mind is listening to the negative talk you are giving to them. So it will create the reality, your life around that, whatever you stuff you give to your mind, it will create life around that. और उनको देख के मुझे बिल्कुल लगता है कि ये ऐसा इसीलिए हुआ है, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट या ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्चुअल करेंट लाइफ रिसेंटली जो उनके साथ हो रहा है. So I conclude one thing, if someone can do drastically negative impact in their life by speaking negative to them, so if someone can replace that negative thought with a positive one, so he or she can make their life for the best version of, जो भी वो चाहते हैं, कोई गोल अकम्प्लिशमेंट है या लाइफ में किसी तरीके का जो भी उनका वे ऑफ सक्सेस है, वो उसको अचीव कर सकते हैं अगर वो अपने माइंड को एक सही पैटर्न पे गाइड करें.
और इस तरीके से नहीं गाइड करें कि नहीं हम बहुत ही बीमार हैं और हमारा ये ख़राब है, हमारा वो ख़राब है। इस तरीके से नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गो थ्रू अ लॉन्ग रन and in a very positive manner. So in this video, I'm going to tell you one thing, that how you are going to change the version of negative to the version of positive. टिप बाय टिप अगर मैं आपको समझाऊँ, और जो मुझे लगता है कि 2020 से 2025 में मैंने अपने आप में चेंजेस किए, और जो इतना लॉन्ग रन जर्नी थी जिसमें फेलियर्स को मैंने अपने तरीके से कैसे एनालाइज किया और उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ किया और उसको अपने लाइफ में इम्पैक्ट नहीं होने दिया उससे अपने आप को। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है कि आप पूरे दिन में क्या कर रहे हैं। किसी दिन बैठिए और सोचिए कि आज पूरे दिन मैं सिर्फ ऑब्जर्व ही करूँगी, कि आज मेरे जो थॉट पैटर्न्स को मैं देखूँगी कि क्या चल रहा है। आपको पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे कि आप पॉजिटिव टॉक्स कर रहे हैं या आप नेगेटिव टॉक कर रहे हैं। बिकॉज़ थ्रू आउट द डे जब भी आप कोई टास्क कर रहे हैं, आप देखिए कि आप उसे नेगेटिव होके कर रहे हैं या आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव। आप ये देखिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी आपको कितनी इन्फ्लुएंस कर रही है। आप छोटे-छोटे काम के दौरान अपने आप को देखिए, या आप देखिए कि जब भी आप घर के छोटे-मोटे काम कर रहे हैं या व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग टू समवन, तो माइंड में क्या चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? क्या नेगेटिव चल रहा है या पॉजिटिव चल रहा है, या आप उस कन्वर्सेशन के दौरान बिल्कुल एनरोल्ड हैं या नहीं? इससे आपको ये पता चलेगी कि आप कितने हाउ मच यू आर अवे फ्रॉम द कॉन्शियसनेस। आप अपनी कॉन्शियसनेस से कितनी दूर हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, थ्रू आउट द डे एक दिन अपने आप को ऑब्जर्व करना है। इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि माइंड नेगेटिव वर्जन में जा रहा है या पॉजिटिव वे में जा रहा है। जब आप एक दिन ये कर लेंगे, फिर दूसरे दिन से आपको क्या करना है, अगर आप कंक्लूजन ये आता है आपका कि यार नहीं, कि हो सकता है आप बहुत ही पैसिमिस्टिक हो सकता है आप ऑप्टिमिस्टिक हो, दोनों ही तरीके हो सकते हैं। कि आप अगर पहले से ही पॉजिटिव हैं तो आप और अच्छा इम्प्रोवाइज़ेशन कर सकते हैं। बट अगर आप नेगेटिव टॉक अपने आप को दे रहे हैं या अपने माइंड को आप एक नेगेटिव पिक्चर फ्रेम करके दे रहे हैं, तो आपको उसे धीरे-धीरे रिप्लेस करना होगा बाय द एम्पावरिंग वन थॉट। ठीक है? जो एम्पावरिंग थॉट्स हैं उनसे आपको उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। कि मान लेते हैं, जैसे कई बार मुझे भी ऐसा होता है, मैं काम करती हूँ और काम के दौरान कुछ छोटी-सी भी प्रॉब्लम आती है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था पहले। तो आई वॉज़ हैविंग दैट प्रॉब्लम कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती थी कि क्यों कर दिया ये ऐसे, ऐसे नहीं होना था इसमें। तो वो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन मैं उस पे भी चिल्ला रही हूँ उसके उस समय पे। तो आपको यही चीज़ एनालाइज़ करनी है। तो फर्स्ट तो प्रोसेस यही है कि आपको ऑब्ज़र्वेशन देनी है अपने आप को। जब आप ये समझ पाओगे कि नहीं, दिन के कहीं टाइम पे मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो जा रही हूँ, किसी छोटी-सी बात को लेके मैं कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जा रही हूँ थॉट प्रोसेस में, तो आपको रिप्लेस करना है। वंस आप उस पैटर्न को ब्रेक कर देंगे जो एक के बाद एक आता जा रहा है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि थॉट हमेशा एक्सपोनेंशियली वर्क करते हैं। तो जैसे ही वो एक्सपोनेंशियली वर्क कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्रेक करना है। यू हैव टू ब्रेक द चेन ऑफ एक्सपोनेंशियल थॉट पैटर्न्स। अब वो नेगेटिव अगर आपने शुरू में दे दिया तो वो नेगेटिवली ही तो उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो आपको उसे ब्रेक करना है इन बिटवीन दैट। जैसे ही आप उसे ब्रेक करेंगे, अब आपको रिप्लेस करना है बाय द एम्पावरिंग थॉट्स, कि भाई अच्छा क्या हो सकता है। मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे ये काम मिला है और मैं ये कर पा रही हूँ। मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, उसके साथ में ये भी कर पा रही हूँ। या आपको उसी समय अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ भगवान की, कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं है जो मेरे पास है। So you must replace the thought with the gratitude कि नहीं, आई एम थैंकफुल फॉर हैविंग द वर्जन ऑफ मी। ठीक है, मैं जैसी हूँ, जो हूँ, मुझे मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, मैं अच्छी हूँ, और भगवान का मुझे बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल करती हूँ कि आई हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड आई एम वेल्दी इनफ, आई एम हेल्दी इनफ फॉर एवरीथिंग, वट एवर रीजन यू आर ग्रेटफुल फॉर। अगर आप उस काम के लिए भी थैंकफुल हो जाएं तो बहुत ही बेहतर हो जाए कुछ। तो रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग, अगर आप किसी गोल ओरिएंटेड हैं, आपने कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम सोचा है या आपने
पर्टिकुलर कुछ भी गोल्स आपने अपने लिए सेट किया कि मुझे इतना करना है या मुझे ये करना है, तो आप उसे विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। विजुअलाइजेशन मीन्स यू आर डूइंग दैट थिंग, और वो माइंड में होना चाहिए। यू हैव टू फ्रेम द पिक्चर एंड गिव इट टू दिस सबकॉन्शियस माइंड की नहीं, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ और मुझे ये करना है, ठीक है। और अपने आप को करते हुए देखना है, यू आर डूइंग दैट थिंग, तो आपको प्रेजेंट में देखना है कि यस आई एम डूइंग दैट थिंग, बट नथिंग टू डू विद द फिजिकल वन, एवरीथिंग टू डू विद द मेंटल इमेज, ठीक है। सारी ही जो इमेजेस हैं वो मेंटली चल रही है, फिजिकल रियलिटी में भी कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन कीजिए। द फोर्थ थिंग मुझे लगता है कि अगर आप दिन के छोटे छोटे फ्रेम में अपने आप को एक टेडेक्स टॉक्स दे दें, तो ये तो सबसे ही बेहतर हो जाए कि यार दिन का कुछ भी समय मिला, व्हेन यू आर वॉचिंग योर सेल्फ इन द मिरर, तो आप वहाँ पे भी कह सकते हैं अरे अंजलि, यू आर सच अ ब्यूटिफुल सोल, एंड आप आपको जो लगता है अपने ऊपर कि यार मैं इस काम में बहुत अच्छी हूँ, मैंने ये बहुत अच्छा किया, या आज के दिन में मैंने यही बहुत अच्छा किया, तो यू मस्ट गिव दैट एप्रिशिएशन टू वन राउंड ऑफ एप्रिशिएशन अपने आप को दे सकते हैं कि अरे यू हैव डन ग्रेट जॉब टुडे, you you are giving, you are helping so many people and whatever thing you think कि वो एक अच्छी चीज़ है, आपकी अच्छी आदत है या आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप वो कह सकते हैं। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि जब भी मैं अपने आप को देखती हूँ आई यूज टू डू दिस थिंग कि यस यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, एंड accept yourself the way you are. I accept myself the way I am and I'm happy with that, because a lot of people do not have this thing which you have. तो अपने आप को एक्सेप्टेंस में रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड एक्सेप्ट विद ग्रैटिट्यूड, नॉट कि यार चलो कर दिया एक्सेप्ट, नहीं, एक्सेप्ट विद ग्रैटिट्यूड मैम, ठीक है। तो ये करना शुरू कीजिए। तो जब आप ये सब करना शुरू करेंगे आपको समझ में आएगा कि लाइफ इट्सेल्फ इज अ गिफ्ट टू यू। जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है सर, और उसके बावजूद आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात, वी ऑल हैव अ पावर टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है हमारे पास। वी कैन जनरेट एनीथिंग वी वांट इन आवर लाइफ, ठीक है, एनीथिंग। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई गोल अकम्पलिशमेंट है या कुछ भी वे ऑफ सक्सेस आपके लिए वो है, आप वो कर सकते हैं। इफ़ यू कैन कंसीव दैट नोशन इन योर माइंड, कि अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन दे दी कि नहीं आप कर सकते हैं, तो आप कर जाएं। आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यही करने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो आपकी रियलिटी है वो बाहर नहीं है, वो आपके माइंड के अंदर ही है। तो आप अंदर ज़्यादा काम कीजिए। सो आई हैव रीड अ कोट समवेयर, आई डू नॉट नो, मुझे याद नहीं अभी एग्जैक्टली कहाँ पढ़ा था। उसमें वो बताते हैं कि देयर आर टू वर्ल्ड्स, वन इज इनसाइड यू एंड वन इज आउटसाइड यू। सो इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड आउटसाइड यू, यू हैव टू चेंज द वर्ल्ड इनसाइड यू। तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। जो हम ये आउटर रियलिटी को इतना ज़्यादा मान के चलते हैं कि यार बाहर जो है वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपके माइंड के अंदर भी बहुत कुछ है। अगर आप उसको एम्ब्रेस कर सकते हैं तो आप बाहर जो भी है वो सब कुछ चेंज होगा। सो इफ़ यू वांट टू चेंज द फिजिकल रियलिटी, यू हैव टू चेंज द वर्ल्ड इनसाइड यू। जो आपके माइंड के अंदर जो वर्ल्ड है उसको चेंज कीजिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपकी जो रियलिटी है वो दो बार बनती है, एक बार आपके माइंड में और दूसरा आपकी फिजिकल रियलिटी। थैंक यू एवरीवन।